السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سیف اشرف ایک مرتبہ پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مدار العالمین سیدی سرکار حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیونی کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے پیدائش کے حالات کے بارے میں، ان کے جوانی میں کون کون سے معاملات گزرے ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ سرکار مدار العالمین کے ہندوستان کے سفر میں، چونکہ حضرت مدار پاک کی عمر 596 سال کی تھی، آپ ہندوستان کیسے تشریف لائے، ہندوستان آنے والے سفر میں کیسے کیسے بڑے بڑے کرامات کا ظہور ہوا، آج ہم جانیں گے ان سب چیزوں کو، تو ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیں۔ حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاکمال بنا دیا، اسی طرح جب آپ مکمل ہو گئے تو ایک دن آپ مراقبے میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بدیع الدین، تم ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے۔ آپ حکم پاتے ہی ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اللہ کے پسندیدہ دھرم اسلام اور رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم جن جن تک پہنچانے کے لیے آپ سنسار میں بھیجے گئے تھے۔ حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرب کے ساحل کے علاقے سے خشکی کے راستے ہوتے ہوئے یمن بندرگاہ سے جہاز پر سوار ہو گئے۔ یہاں سے سمندری سفر شروع ہوتا ہے۔ جب آپ کشتی پر سوار ہوئے تو دیکھا کہ کشتی پر کفار اور مشرکین ہیں۔ خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دین کی تبلیغ کا اچھا موقع دیکھا اور لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیا، دین کی دعوت دینی شروع کر دی، مگر لوگوں نے ان کو گالی گلوچ کیا اور انہیں پاگل کہا، مگر اللہ رب العزت کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس کشتی پر قہر نازل کر دیا، جس وجہ سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، سارے کے سارے لوگ مرنے لگے۔ آخرکار حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تختی پر سوار ہو گئے، جس پر ساتھ میں 11 لوگ اور بھی تھے۔ ایسی حالت میں بھی حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم اب بھی پاگل ہو گئے ہو، اس حالت میں بھی تمہیں اپنی پڑی ہے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ دیکھو، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا رب مجھے کنارے تک پہنچا دے گا، اگر تم بھی میری بات مان لو اور اس کو اقرار کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں بھی حفاظت کے ساتھ پہنچا دے گا، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور آخرکار وہ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مر گئے۔ مگر حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود بھی آپ زندہ رہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو کنارے پر پہنچا دیا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تو ایسی سنسار اور جنگل اور بیابان تھا کہ ایسے دیکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ میری بھوک کو تو ختم کر دے، میں بھوک کی وجہ سے کمزور نہیں پڑنا چاہتا، میں چاہتا ہوں مولا کہ آپ ایسا کر دیں کہ مجھے کبھی بھوک ہی نہ لگے۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات فوراً قبول کر لی اور یہ دعا کی مقبولیت ہو گئی، اور اس دن سے حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاف کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ بھوک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو پھیلانے میں کمزوری نہ کر دے۔ المختصر یہ کہ آپ گجرات کے کئی شہروں سے ہوتے ہوئے خمبات پہنچے۔ یہاں کا راجہ جسونت سنگھ مدار صاحب کی سیوا میں حاضر ہوا اور ایسا کچھ ہوا کہ سمے سمے پر آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر رہا کرتا تھا۔ پھر ایک دن کہا کہ حضور، مجھے بھی آپ دنیا کے برے کاموں سے بچائیں اور اپنے دامن میں لے لیجئے۔ آخرکار حضرت مدار العالمین نے راجہ جسونت کو مسلمان کیا اور راجہ کے ساتھ ساتھ اپنی اچھا سے اسلام قبول کرنے والی جنتا بھی بہت بڑی تعداد میں حاضر ہو گئی اور سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ راجہ کا نام سرکار مدار پاک نے بدل کر جعفر رکھا۔ پھر آپ دوبارہ حج کے لیے واپس تشریف لے گئے۔ المختصر اس کے بعد حضرت مدار پاک بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف میں دکھیوں کا ٹاٹا لگا رہا کرتا تھا۔ کوئی ایسا بیمار تھا کہ حکیم صاحب کی ساری محنت بیکار ہو چکی تھی، تو کوئی اس طریقے سے بیمار تھا کہ اس کے دکھوں کا حال نہیں تھا، مگر یہاں جو روتا ہوا آتا سکھ اور خوشی کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ حضرت مدار پاک کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی جو آ کر کہتی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, मैं शुक्र अदा करती हूँ, मगर एक ऐसी नेमत है जिससे आज तक मुझे महरूमी है, आप मुझे वो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिलवा दें। मदार पाक ने उस खातून को देखा तो कहा कि तुम कौन हो? आपने फरमाया कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की बहन हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कई मुद्दत से एक औलाद के लिए तड़प रही हूँ। मेरे वालिद का नाम अबू सालेह है और मेरा भाई अब्दुल कादिर जिलानी है, जिसे दुनिया भर में गौसे आजम कहा जाता है। मेरी प्यास आज भी शांत न हो सकी है। मुझे मेरे भाई ने बताया था कि आप बदिउद्दीन बगदाद आ रहे हैं और आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को ज़रूर कबूल कर लेगा। मैं अब आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मुझ पर रहम करें। सरकार मदार पाक ने जब ये मामलात देखे, मेरे भाई अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझसे कहा है कि मैंने लोहे महफूज पर देखा है कि तुम्हारे हक में औलाद नहीं है, तुम्हारा दुख सिर्फ बदिउद्दीन नाम के बुजुर्ग ही खत्म कर सकते हैं और मैं आपके पास हाजिर हूँ, मेहरबानी करके दुआ कर दें। हजरत सरकार मदार पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब सरकार गौसे पाक की बहन की ये हालत देखी, हजरत मदार पाक ने जब उनकी इस दर्द को देखा तो आपने फरमाया कि जाओ, तुम एक बेटा मांगती हो, तुम्हें एक नहीं बल्कि अल्लाह तुम्हें 2 बेटा अता करेगा। और मदार पाक की उसी वक्त वो दुआ कबूल हो गई। हजरत मदारुल आलमीन ख्वाजा जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब 295 हिजरी में पहली मर्तबा आप अजमेर तशरीफ लाए थे, यहाँ पर आपने तारागढ़ में कयाम फरमाया। उस वक्त मदारुल आलमीन के साथ काफिले वाले को देखकर तारागढ़ में रहने वाले लोग डर गए, क्योंकि वहाँ किसी वक्त मुजाहिदीन इस्लाम राहे हक में जिहाद करते हुए शहीद हो गए थे, जिनकी मुक़द्दस लाशें बिना कफन दफन के मुद्दत से वहीं पर पड़ी हुई थी और उनसे रात को नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुआ करती थीं और उस नारे तकबीर की आवाज़ से हमल वाली औरतों के हमल साकित हो जाया करते थे। तारागढ़ के लोग इस बात से घबराए हुए थे कि पहले जो लोग आए हैं वही अभी तक हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं, अब ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर आ गए हैं। लिहाजा सब ने एक राय होकर अपने सरदार को आपके पास भेजा और ये कहलवाया कि बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ से चले जाएं, कहीं दूसरे मकाम पर आप लोग अपना डेरा डाल लें। हजरत मदार पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उन लोगों से कहा कि भला मेहमानों के साथ इस तरीके का बर्ताव कौन करता है, तुम इस तरीके से मेरे साथ क्यों पेश आ रहे हो, इसकी वजह क्या है। तो उस सरदार ने अर्ज किया कि हजरत आपसे पहले भी आप ही जैसे कुछ लोग आए थे, वो लड़ाई में यहाँ शहीद हो गए और रात को उनसे इतनी डरावनी आवाज़ पैदा होती है जिनकी वजह से हम एक मुद्दत से मुसीबत में गिरफ्तार हैं। ये सुनकर आपने फरमाया कि जाओ, आज रात वो आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। सरदार ने अर्ज की कि अगर आज रात हमारी बस्ती ने आराम के साथ गुजारी तो हम तमाम लोग मुसलमान होकर आपके गुलाम बन जाएंगे। इसके बाद सरकार मदारुल आलमीन ने अपने खलीफों से इरशाद फरमाया कि जाओ, उन शहीदों की लाशों को दफन कर दो। लिहाजा तमाम खलीफा और मुरीदों ने मिलकर आपके हुक्म के मुताबिक इस काम को अंजाम दिया और जैसे ही उन्हें दफन कर दिया, उस रात को नारे की आवाज़ आनी बंद हो गई। बस्ती वालों ने सुकून के साथ आराम किया और पहली मर्तबा कई मुद्दत के बाद बस्ती वालों ने आराम से सोया। सुबह सुबह तारागढ़ पे रहने वाले सारे लोग आपकी बारगाह में हाजिर होते और सब के सब आपके दस्ते अक़दस पर इस्लाम कबूल कर लेते। दूसरी बार सरकार मदारुल आलमीन 585 हिजरी में तशरीफ लाए अजमेर शरीफ में। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप हिंदुस्तान में तशरीफ ला चुके थे। हजरत मदार आजम हजरत मदार पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अजमेर में कोकिला पहाड़ी पर आप जलवा अफरोज थे। इस पहाड़ी को मदार टेकरी के नाम से भी आज भी जाना जाता है। हजरत मदार आजम के कोकिला पहाड़ी पर कयाम होने की खबर जब हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजीरी को पता हुआ तो आप उनकी बारगाह में हाजिर हुए और मदारुल आलमीन से मुलाकात के लिए आप अब उनके हुजरे में तशरीफ ला चुके थे। अपने कुछ मुरीदीन और अहले मोहब्बत के साथ कोकिला पहाड़ी पर आप तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर अपने साथियों को अलग ठहराकर सरकार मदारुल आलमीन के करीब खामोश बैठ गए। अब इन दोनों बुजुर्गों की मुलाकात की कैफियत क्या बयान में आ सकती है। अल्लाहु अकबर, जहां ऐसे दो बुजुर्ग अल्लाह के प्यारे जमा होंगे तो किस कदर रहमत इलाही की बारिश होगी। इन लोगों की मुलाकात असल रूहानी मुलाकात हुआ करती है। ये लोग चुप बैठे हुए बात किया करते थे। सच है
उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सरकार हजरत ख्वाजा बदिउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि जिस शख्स ने हमारी खामोशी से फ़ायदा हासिल नहीं किया वो हमारी बात से क्या हासिल करेगा। बहुत देर तक दोनों बुजुर्ग इसी तरह बैठे रहे, एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन तक बैठे रहे। आखिरकार ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज वहां से उठते और उठते अदब से वापस चले आते। बुजुर्गों की मुलाकात की कैफियत कुछ बयान नहीं हो सकती, इसके राज तो वो खुद जानते हैं या फिर उन जैसा कोई बुजुर्ग। हज़रत मदार पाक की उम्र तकरीबन 596 साल की थी और बहुत सारे करामात का ज़ुहूर आपके दस्ते अक़दस से हुआ। एक मरतबा एक दिन आप नदी के पास ही ठहरे हुए थे कि एक व्यापारी अपना माल लेकर नदी पार कर रहा था कि तूफान ने उसके नाव को नदी में डुबो दिया। दूसरा व्यापारी जो नदी के किनारे खड़ा था आपके पास रोता हुआ आया और विनती करने लगा, गुजारिश करने लगा कि मुझे बर्बाद होने से बचा लिया जाए। तब आपने एक मुट्ठी मिट्टी जैसे ही नदी में डाली, कश्ती पानी पर तैरने लगी और उस पर सामान वैसे ही लदा हुआ था। ये देखकर व्यापारी को बड़ा अचंभित हुआ, उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं थी। वो अपने सभी साथियों समेत आकर आपकी बारगाह में आकर मुसलमान हो गया। हज़रत ख्वाजा बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब आप एक मरतबा फिर से बगदाद लौटे, आपने सरकार गौसे पाक की बेटी के पास जाकर कहा कि मुझे एक बेटा दे दिया जाए, जो आपने कहा था कि 2 बेटों में से एक बेटा मुझे चाहिए। सरकार गौसे पाक की बहन सैयदा नसीबा बीबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब आपके आने की खबर सुनी तो आपने बच्चों को गुस्ल करवाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें हुजूर के यहाँ तशरीफ ला रही थी कि बड़ा बेटा मोहम्मद सैयद छत पर किसी काम से गया और अल्लाह की मर्जी से छत पर से गिर गया और उसी वक्त वो इंतकाल कर गया। अभी घर में खुशियों का सिलसिला था और अब ऐसा मातम हुआ कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस घर को किसकी नज़र लग गई है। एक माँ जिसके सामने एक बेटे की लाश हो और दूसरे का वैसे ही बिछड़ जाने का गम था, वो क्या करे। फिर बाद में बीबी नसीबा हज़रत मदार पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में हाजिर होती और आपने कहा कि मोहम्मद को लेकर मैं आ रही थी, जिनका नाम जाने मन जन्नती है आज, कि मैं मोहम्मद को लेकर आई और गुजारिश की कि हुजूर ये मेरा बड़ा बेटा था जिसे मैं आपको देना चाहती थी, जिसे मैं आपको देने के लिए ला रही थी, मगर आज ये छत से गिर गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। मदार पाक ने फरमाया कि तुम मुझे ये लाश ही दे दो और फिर लाश के पास जाकर बाल पकड़कर आपने कहा कि ऐ जाने मन जन्नती, अल्लाह के हुक्म पर तुम खड़े हो जाओ। आपने जैसे ही ये कहा कि ऐ जाने मन जन्नती, अल्लाह के हुक्म पर तुम उठ जाओ, वैसे ही हजरत सैयद मोहम्मद यानी हजरत जाने मन जन्नती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उसी वक्त उठकर बैठ गए। ऐसा लगता कि जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। हजरत मदार पाक की यही करामत पलक झपकते ही पूरे बगदाद में फैल गई। यहाँ चर्चा होने लगा कि नसीबा का भाग्य कितना अच्छा है कि मरा हुआ बच्चा भी जिंदा हो गया। इसके बाद आपकी सेवा के लिए हजरत बीबी नसीबा ने अपने दोनों बेटे अहमद और मोहम्मद को अपने दोनों भतीजे सैयद रुकनुद्दीन और शमसुद्दीन को भी आपकी सेवा में दे दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें।